Dear audience, education, especially higher education, it had always been an elitist affair. It always left a large section of society deprived of access to it. Further, the teaching and learning process had been teacher and institution centric for most of the time. With the advancement of the open distance and learning system, that brought about a paradigm shift in the dissemination of knowledge. It brought, thus the shift was more on learning. To provide equal access to educational opportunities has always been an important goal for our democratic ideals. The open distance learning took a new turn. It's credit of modern information and communication technologies. The internet brought about a revolution, and it removed the geopolitical boundaries of educational system. The impact of emerging information and communication usually meant for July 2022 learners. For this program, we have a number of panelists here. I would like to start from the esteemed Principal, Government Degree College, Bais Kopara, Dr. Muhammad Shafi Loan Sahab. Please take over the chair as a panelist here today. Dr. Shahnaz Ahmad Dar Sahab, please take over the chair. To take over the chair to Assistant Regional Director, IGNOU Regional Center, Srinagar, Dr. Mudassir Hassan Bhatt Sahab. I would like to call respected Coordinator 30014, that is Dr. Irshad Ahmad Loan Sahab. Please take over the chair. I would like to call upon the Coordinator of present existing Learner Support Center 30012, Dr. Ali Muhammad Peer Sahab. Please take over the chair. Now we have another dignitary here, that's our former coordinator. I would like to call on Dr. Bashir, Mehraj Bashir Daga Sahab. Please take over the chair. Thank you. Which is helping thousands and lakhs of the students who are not in a position either to go through the regular mode of admission or by other. Business mode of learning is giving you the opportunity to fulfill your dreams, I can say like that. And for that, the student must be serious about his time which he is spending for achieving this type of the education. Otherwise, the whole camps, but they are trying their level best. But ultimate responsibility lies on the shoulders of in the study center. So this is very important institution at that time. That I am going to tell you. You are lucky enough that you are having these two centers here in Handwara and at Kupwara and हम टेक्निकली बताएंगे कि किस तरह आपकी जो इग्नो की प्रोसेस है आप लोगों को कैसे करने हैं. अटेंशन प्लीज. दूसरा जो है, दूसरा आपको जो डेलिब्रेशन में बोलेंगे, ये दो फेज में हम उनको डिवाइड करते हैं. टेक्निकल इंडक्शन कंडक्ट करने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा हमारे असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर इग्नो रीजनल सेंटर श्रीनगर के डॉक्टर मुदस्सिर हसन भट्ट साहब को कि काइंडली start the technical session of induction program for our learners. Please welcome. कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपकी डिग्री कैसे कंप्लीट होगी. इग्नो की तरफ से आपका एडमिशन प्रोसेस जो आप ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, नेक्स्ट स्टेप एग्जामिनेशंस, असाइनमेंट्स, इवैल्यूएशन, इन सब चीज़ों के बारे में इन इंडक्शन प्रोग्राम्स के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि टाइमली जो आपका डिग्री है वो कंप्लीट हो जाए. इग्नो में हर एक डिग्री की, हर एक प्रोग्राम की एक मिनिमम वैलिडिटी होती है
से एमए प्रोग्राम है 2 साल का है और एक मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है। अगर जून सेशन है उसका फॉर्म नॉर्मली फेब में आता है और जुलाई सेशन जो दिसंबर एग्जामिनेशंस है उनका फॉर्म सितंबर में आ जाता है। इग्नो में सबसे अच्छी बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अगर एग्जामिनेशन स्किप करना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। आप अगर ये चाहें कि मैं सारे पेपर्स में अपियर ना हूँ, कुछ ही कोर्सेज में अपियर हूँ, आप कुछ ही में कर सकते हैं। जैसे आपका बीए प्रोग्राम है तो 8 कोर्सेज हैं आपके पास में अपियर होने के लिए कमिंग जून में। आप अगर 8 में तैयार नहीं हैं, आप 4 को चूज़ कीजिए, 5 को चूज़ कीजिए। जितना भी आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त चूज़ करेंगे उन्हीं का आपको एग्ज़ाम देना है। और इसके बाद आपको 1 साल वेट नहीं करना है। आपका जो जून के बाद दिसंबर एग्ज़ाम है उसमें आप सारे पेपर्स दे दीजिए। उसमें आप वो पेपर्स भी दे दीजिए जो ड्यू हैं और जो पेंडिंग है वो भी दे दीजिए। मतलब इग्नो में पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है। हम लोग को यही सजेस्ट करेंगे हर एक लर्नर को कि आप अपना मिनिमम ड्यूरेशन में अपनी डिग्री कंप्लीट कर लीजिए। अगर 2 साल है तो 2 साल में कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन बाय चांस अगर आप कहीं इन्वॉल्व है, कहीं नहीं कर पाते हैं, तो बिफोर एक्सपायरी जो आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है उससे पहले आपको सारा प्रोग्राम क्लियर करना होता है। अदरवाइज जैसे एमए में 2 साल और 4 साल है, मैक्सिमम टाइम 4 साल है, ठीक नहीं कर पाते हैं तो आपकी डिग्री लैप्स है, आपकी वो डिग्री अवार्ड नहीं होगी। अब उसमें भी इग्नो का ऑप्शन ये है कि आपको इन केस किसी का प्रोग्राम लैप्स हो गया हो, मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गई हो, उसके लिए ऑप्शन है कि उसको फ्रेश एडमिशन लेना है। लेकिन उसने जो पेपर्स पास किए हैं वो उसको काउंट होंगे। अगर किसी प्रोग्राम में 16 पेपर्स हैं, अब 15 पास है, 12 पास है, जितने क्वालिफाई हो चुके हैं आपको फ्रेश एडमिशन लेना है उनमें। लेकिन जो आपके क्वालिफाइड पेपर्स है उसको कहते हैं हम क्रेडिट ट्रांसफ़र, आपका वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और रिमेनिंग पेपर्स आपको पे करने हैं। उसके लिए फ़ी है, क्रेडिट ट्रांसफ़र करने के लिए फ़ी है। लेकिन बेटर है कि ये सब ऑप्शंस अवॉइड किए जाए। आपका जो मिनिमम टाइम है, ड्यूरेशन है 2 साल है, आप उसमें कंप्लीट कर लीजिए। 3 साल है उसमें कंप्लीट कर लीजिए। इन केस बाय चांस कभी ऐसे एक्सेप्शनल केसेस आते हैं डिग्री कंप्लीट नहीं हो, तब भी ये ऑप्शन है। कॉल आवर एस्टीमेड रीजनल डायरेक्टर इग्नो रीजनल सेंटर श्रीनगर, रेस्पेक्टेड Dr. Shahnaz Ahmad Dar Sahab, please take over the dice and disseminate the full-fledged information to the learners of this session. हमारे स्टडी सेंटर्स हैं, ये बहुत बड़े सेंटर्स हैं। इनकी बहुत अहमियत है क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे थे 4000 स्टूडेंट्स अभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुपवारा के साथ जुड़े हैं इग्नो के थ्रू, और 4000 से कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इग्नो के बगैर जो यहाँ पर स्टूडेंट एनरोल्ड है रेगुलर एजुकेशन के लिए, वो 4000 से कम है। आप लोगों को इस तरीके से पता चलेगा कि इग्नो की अहमियत, इग्नो का रोल कितना बड़ा है। जब मैंने बात की कि इग्नो का जो रोल है कश्मीर के हवाले से, कश्मीरी सोसाइटी के हवाले से, हम कश्मीरी के हवाले से, वो बहुत बड़ा है। मैंने सिंपली एक कॉलेज की, एक स्टडी सेंटर की बात करी जिसके अंडर 4000 से ज़्यादा बच्चे एनरोल्ड हैं। इसी तरीके से आप देखिए जो रीजनल सेंटर श्रीनगर है, रीजनल सेंटर श्रीनगर में हमारे कश्मीर रीजन में 43 स्टडी सेंटर्स हैं और लद्दाख में हमारे 2 स्टडी सेंटर्स हैं। इन स्टडी सेंटर्स में जो अभी हमारा नया एडमिशन हुआ है, एडमिशन के हवाले से ये सभी चीज़ें जो है ये बन गई है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इग्नो में ऑलरेडी हमने ये सभी चीज़ें अडॉप्ट की है, इनकॉर्पोरेट की है। इवन जो आपके जो फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो कॉलेज। Yahya sir, fraternity Yahya Khan sir, who is going to take the press brief. Please Yahya sir. बोनोफाइड के हवाले से मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा। आप लोग जब यहाँ अपनी बोनोफाइड जमा करवाएंगे, जिस दिन रीजनल सेंटर में आप लोग की बोनोफाइड पहुँचेगी, नेक्स्ट डे आपकी सभी बोनोफाइड्स अटेस्टेड होगी आपके कॉलेज में।